Canada doesn't have any quota, any number limitation. Only 1 out of 6 students get university halls. In Canada, the colleges concept is like that. These are the community colleges. Like these colleges run those courses which are required by the community of that particular area. Housing is another problem which come across. Talk about Ontario. Ontario have 24 public colleges and close to 22 universities also. Don't listen to the negativity of Canada. Hello everyone, this is your host and a dost, Saurabh. Welcome to our new episode of The Living Pod by Saurabh. The purpose of these episodes and this podcast is very clear. We want to bring the best of people on this show and discuss topics and ideas which been defining this ecosystem called higher education. And as I always say, Namaste, Shabakar, Sat Shri Akal, Hola, good morning, because we don't know where you are watching from, because the way we are getting your love, we have audience from 160 plus nationality. There are few nationality which even I can't even pronounce their name, so thank you for your love. I'll continue to talk. Let me introduce today's guest, and today's guest is very distinguished because मैंने अपना दोस्त भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने अभी इन्हें जानना पहचानना शुरू किया है, बट जब भी मैं इनसे मिला हूँ ना, एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आया है. एक बहुत मतलब एक होता है ना कि बड़ा भाई मिला जो अपनी विजडम, अपनी इनसाइट शेयर करने में घबरा नहीं रहा, इनको और ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हैं, राइट. एंड ऐसे इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस एंड दे वेरी ओपन माइंडेड एंड दे डोंट फील इनसिक्योर. ऑन दैट नोट, लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेज गेस्ट डॉक्टर सुमित जैन. डॉक्टर बोलू साहब, जैन साहब, डॉक्टर बोलू, जो मुझे तो जैन साहब निकलता है मन से. जैन साहब ही बोलिए, जैन साहब, कोई दिक्कत नहीं है, नो वरीज. डॉक्टर सुमित जैन, आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, क्योंकि आप मेरे सीनियर हो और आपका बायो इतना बड़ा है और इतना इट्स सो इलस्ट्रेटियस दैट इफ आई इंट्रोड्यूस आई विल मिस समथिंग. सो प्लीज शेयर योर जर्नी अबाउट यू एंड वेलकम ऑन द शो. Thanks a lot, Saurav. It's a really honor to be here in this office and meeting you and your team. It is such a professionally managed organization, and it's really inspired me also. And at such a young age, you have been wonders. इतना भी छोटा नहीं हो जैन साहब, लगता हूँ छोटा, बट आपसे 4-5 साल ऊपर नीचे होगा. No. But your achievements are much higher than me. नहीं सर. And myself सुमित जैन, मैं पंजाब के एक छोटे से सिटी जालंधर से बिलोंग करता हूँ. And I did my BTech in mechanical engineering, did my masters from NIT Jalandhar in industrial and production engineering, and did my doctorate again from NIT Jalandhar. And I have 13 years of teaching experience to the students of mechanical engineering, and did lot of different assignments in college in my teaching days as a head of department, as a professor, as a teacher, as a examination head, as a dean. And afterwards, parallelly, I come in study abroad destination, study abroad business, because I feel that a lot of students are misguided in this industry. So couple of students came to me, they got their refusals at that time in 2009. They asked me, sir, what to do? So I prepare a file for them, submit it to the Canadian High Commission, and they got visa. So this is how our journey And started. when was this? It was in 2009. तो आपको 15 साल हो गए. 15 साल हो गए. In between, my father helped me, and my brother, who is in Canada, has helped me a lot, and he come up with a lot of new ventures which supported Jain Overseas here in India, and we built this whole ecosystem. In last 15 years, we have sent more than 50,000 students to Canada only, and across Canada. Like Jain Overseas has been working from one end to another end, most of the institutions, and every place you will find our students. 50,000 students. Yes. That means on an average, every year you are sending around 3,000, 3,500, and this is, I'm talking average. I'm sure there are days when you have like crossed students, 5 digit also. 5 digit with Any year where what is your highest number in any year? that 2023.
which is just 2 years back. just 2 years back. Pandemic के बाद. Pandemic के बाद. You mentioned 50,000 students across Canada. Across Canada. So you only do Canada. Till last 6 months, we have to come up with other few destinations, UK as well as US and Germany. Prior to that, we are doing Canada only because of lot of changes in the student recruitment, student policies. So it forces us to parallelly bring another system because we Destination. have a huge staff there. Because team is there, educated team is there, ethics are there. So we see that there is an opportunity in other destinations also, where students are being misguided. Either But you can say Canada की बात करते हैं पहले, है ना? आप मतलब बोल सकते हो आप कैनेडा किंग हो आप? not king. Like it's I'm an RCIC member also. अच्छा. So क्या होता है ये? regulated government immigration consultant है ये RCIC member है. RCIC member. Okay. तो ये क्या करते हैं ये? ये एक एग्जाम होता है. एग्जाम में आपको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एग्जाम देना पड़ता है. देन यू RCIC. RCIC. Right. RCIC full form is Regulated Canadian Immigration Consultants. So basically if you want to get into the business of sending students to Canada, you need to be RCIC certified or licensed. It is an added advantage, but अच्छा. if you want to work in Canada, you have to have RCIC. नहीं समझा. अभी आप कह रहे हो कि ये अगर good to आपने have है. कनाडा में काम हाँ. करना है, कनाडा में ऑफिस खोल के काम अच्छा करना है, कनाडा में ऑफिस में ऑफिस खोल के काम तो आपका करना है, ऑफिस कनाडा में भी है. I have office in अच्छा. Canada in Toronto and Edmonton. कैसे हुआ स्टार्ट है? एक तो आपके पास कुछ फाइल्स आई. कुछ फाइल्स आई, रिफ्यूजल हुए. देन माय ब्रदर वाज देयर, ही वाज वर्किंग इन a college. Then he's pushed me कि you start this work, this is a good business, so I will support you. So this way he supported us and we start this journey of study abroad. Then getting some agreements from other colleges, from Algonquin, then Sheridan, Humber, and right now Jain Overseas is working with most of Canadian colleges and universities, public colleges and universities. Tell me more about Canada as a ecosystem. How many colleges are there? In Canada, like if you talk about Ontario have 24 public colleges. Okay. And close to 22 universities also. Like Okay. colleges, in Canada, the colleges concept is like that. These are the community colleges. Okay. Like these colleges run those courses which are required by the community of that particular area. Right. Like in Ontario doesn't have petroleum engineering courses because Okay. petroleum is in Alberta. So in Alberta community colleges, you find a program related to petroleum, chemical, gas, oil. In Ontario, it is more like a manufacturing hub. Okay. You can get a mechanical programs like in Windsor. Detroit is a mecca of automobile. So you get those kind of programs in these community colleges. Those are skilled courses. Particularly, university education is a formal graduation, 4-year graduation education. This is more applied education. So community colleges basically concept is more or less applied education for the students. When they study, they get more enhanced practical experience. Yeah. They learn life skills. Lab work, and that's why it is in great demand. Because if we compare to India, we don't have much practical infrastructure here in the colleges where I studied and did my engineering in diploma in 1993, and then did my engineering in 1998. And we found that there's not proper infrastructure updated. Still, a lot of obsolete machines exist because of the investment in the colleges, lack of public support, government support. So these are the limitations. While in Canada, they have the latest technology. Latest Infrastructure is good. Infrastructure, like a tractor model which is to be launched in 2025 is in the campus in January itself. So the students should get a real practical experience. कनाडा एकदम से क्या हुआ कि एकदम से लाइक लाइक लास्ट 2 साल स्पेशली लास्ट 8-8 साल एकदम से लाइक मतलब कनाडा बोलते ही थोड़ा सा एक ना नेगेटिविटी सा माहौल बनने लगता है या लाइक आई बीन टॉकिंग टू लॉट्स ऑफ एजुकेशन पार्टनर्स हु बीन लेट्स से इन द इंडस्ट्री फॉर 30 years. द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग कनाडा टू देम समहाउ उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता है कि नहीं हम नहीं करते कनाडा. ऐसा
है ऐसा, मतलब ऐसा एक माहौल बना है? माहौल बना है, पर ये सोशल मीडिया में बना है। स्टिल जिनका भाई बहन कनाडा में है, वो अपने भाई बहन को बोलते हैं वो कनाडा आए, क्योंकि आप देखिए कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो इमिग्रेंट के मोस्ट वेलकम कंट्री है। इज ऑलमोस्ट एवरी अदर नेशनैलिटी पर्सन इज स्टेइंग इन कनाडा, इमिग्रेंट इन कनाडा। चाहे आप साउथ अमेरिका की बात ले लें, चाहे आप एशिया की बात ले लें, चाहे आप साउथ अफ्रीका की बात ले लें। अब हुआ क्या, द प्रॉब्लम अराइजेस कि पिछले 3-4 सालों में उन्होंने तो एक गुड फेथ में एक सिस्टम बनाया, बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया। जैसे कुछ पे आफ्टर वीज़ा, कि आपको पैसे वहाँ जाके देने हैं, ऐसी चीज़ें, प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये सब चीज़ें आई जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को रिव्यू कर दिया। उसकी वजह से गवर्नमेंट इज अ व्यू दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेरी कंट्रोल्ड, बट सडनली वन डे दे रियलाइज there is a huge number of students who are over there creating a lot of chaos. Unemployment increases. So housing is another problem which come across. So then they identified a lot of reasons. So they identify one reason is international students, because Canada doesn't have any quota, any number limitation, and private colleges doesn't have any. अब तो है ना? अब now it is quota. ठीक है, अभी तक नहीं था। अब कोटा तब नहीं था, तो तब फ्री ग्रोथ थी। सो उसकी वजह से थोड़ा सा एक सेटबैक लगा, लेकिन इट इज कमिंग बैक, बिकॉज अब क्या है, उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स कर दिए। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स, क्या अभी कितना 4,70,000? अभी 4,37,000 करीब है। तो कैसे होता है जी, मतलब 4,37,000? इसमें यूनिवर्सिटीज 12% इज फॉर मास्टर डिग्री, रेस्ट इज फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बैचलर डिग्री। अब उस मास्टर डिग्री के लिए उन्होंने 12% कोटा रिजर्व कर दिया। पहले मास्टर डिग्री और पीएचडी और K-12 स्कूल्स के लिए कोटा नहीं था, लेकिन दिस जनवरी दे एडेड दैट कोटा टू। तो उससे क्या है कि अब लिमिटेड क्वांटिटी में वो बच्चा ले रहे हैं। अब वो जो आगे बच्चा पढ़ेगा, ग्रेजुएट होगा, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी उतनी एग्जिस्ट करेंगी। प्लस उन्होंने जो बच्चों को फील्ड ऑफ स्टडी डिफाइन कर दिया कि आप अकेला बिजनेस पढ़ने नहीं आएंगे, आप कुछ स्पेशलाइजेशन सप्लाई चेन या ट्रेड के कोर्सेज या ट्रांसपोर्टेशन के कोर्सेज, लॉजिस्टिक्स कोर्सेज, स्टेम कोर्सेज, हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, अब ये सब पढ़ने आएंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चे मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज में जाने लग गए, तो उससे उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी आगे जाके बहुत बड़ी है। क्योंकि देयर इज अनदर थ्रेड, यू नो, इंडिया कनाडा रिलेशनशिप एंड यूएस कनाडा रिलेशनशिप। सो these are the factors which will contribute that Canada have to take a lot of students in coming future, because if they have to remove their dependency on US, they have to bring a lot of industry over there. So there lot of opportunity will exist, lot of infrastructure will be built on, because Canada right now is that America is like elder brother to them. Yeah. So US is like elder brother. So now that relationship become so then they come up with, they have to be on their own. So I believe there is an opportunity for students. I agree on this point. I will go deeper, but I agree that I do the same thing. I come from a background wherein global mobility, and then students, agents, everyone should be aware that global mobility, there's a mobility through education, there's a mobility through immigration. So if you are looking to go have global mobility through immigration, then you need to have that kind of expectation. You need to prepare and aim for courses where you should get a job. And अगर वैलिड बोला आपने कि अगर लाइफ स्किल होगी और आप उस वाले फील्ड ऑफ स्टडी में जा रहे हो जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, so why will you will not get a job? At the same time, you need to be clear if you are going for global mobility for education. That means you are aiming for probably U15s. You're aiming for probably more reputed private or public colleges in Canada, right? And like Australia ने किया कि there's a regulated growth. Then still Australia में 45,000-50,000 students जा रहा है. There are only 42 and people are like, यार Australia ना इतना तेज नहीं grow हुआ. And my question is that there are only 42 universities. That means they're already having 1,000, 1,500, 2,000 international students every campus, which is their 10-15% of their overall.
students. So, and when there's a regulated growth, it's good for students, it's good for the local public, it's good for education partners, so that Definitely. you can have a more sustainable, stable growth than ऐसे और फिर एकदम ऐसे, because वो sustainable भी नहीं है. वही जो कनाडा में पीछे चल रहा था वो सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ नहीं नहीं थी, थी. वो बहुत एक्सपोनेंशियल थी, तो उसको कभी ना कभी वो एक फॉल आना ही था. But आप लोगों ने कोई एसोसिएशन नहीं बनाया था जब Association if है. you are in part of 15 years in this space, Canada is your core, you know you are good actor, but I'm sure you are aware कि यार लोग जैसे आपने बताया regions, right? तो as a someone who is senior in this space, you know, for Canada recruitment, so what all best practices you were suggesting or now you've been doing or promoting, if any? यू नो कनाडा में एक ड्रॉबैक जो है कनेडियन गवर्नमेंट का है कि वो सिर्फ और सिर्फ विद इन कंट्री कंट्रोल कर सकते हैं. आउटसाइड कंट्री दे हैव नो कंट्रोल बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम देयर डोमेन. प्लस देयर इज नो कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन एजेंट्स एंड कनेडियन हाई कमीशन. ऐसा क्यों? There is जैसे like ऑस्ट्रेलिया में Australia एडी है. हाँ, exactly. In Canada there is क्यों no आपको operation प्रमोट like this. आपको इनिशिएट नहीं करना We चाहिए have था? been, अभी भी कर सकते हो we आप. have sent them repeated mails, Hmm. but they say these are Not required. not required. They haven't taken it seriously. अभी भी? Abhi till now, if they have taken it seriously, this situation never arises. So, still lot of work to be done in this sector, in this field, and still lot of opportunity. And we have been discussing with colleges because those are our partners, and we discuss with every college and university, and they, from their perspective, they are conveying to the IRCC, but to क्या बोल रहे हैं? IRCC. IRCC. अब ये क्या है? ये गवर्नमेंट द इमिग्रेशन दिस जो अथॉरिटी है अथॉरिटी इनकी. जो IRCC वीजा देती है, तो IRCC देता है RCIC, इमिग्रेशन रिफ्यूजी कैनेडियन कंसल्टेंट. तो IRCC अब जो RCIC होता है, वो रेगुलेटेड कंसल्ट कैनेडियन कंसल्टेंट्स है. IRCC इज गवर्नमेंट that- बॉडी. RCIC comes under IRCC. नो No. RCIC इज इंडिपेंडेंट बॉडी. कॉलेज है एक, Okay, उसके अंडर सारे RCCs आते हैं, certified हो गया. सर्टिफाइड आते हैं. Okay, and this is IRCC is a immigration government refugee government body. जो इमिग्रेशन पार्ट को कंट्रोल करती है. Got your point. हाई कमीशन हो गया यूके में, या इमिग्रेशन डिवीजन हो. इमिग्रेशन हो गया. अच्छा. तो उन्होंने कम्युनिकेशन किया होगा. अब उसका रिजल्ट्स नहीं हमें इतने दिख रहे कि जहाँ पे एजेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज एजेंट्स आर बिग स्टेक होल्डर्स. राइट. We are there to provide them right input. राइट. But I'm sure in future there must be some must be. points. नहीं, अगर मैं आपकी जगह होगा और मैं अगर मेरा अगर मैं 50,000 स्टूडेंट भेज चुका हूँ इन कनाडा में, मैं तो पक्का कुछ एसोसिएशन बनाता, या अभी We have been part of a lot of associations. लाइक Those have been like ACOS is there, SACA is there. क्या अकॉस क्या है? ACOS Association of ACOS. ओके. SACA is there. SAG. SACA. SACA is there. So all these organizations are working toward the development of the सेक्टर. sector and working helping बट the ये कैसे students. क्या मैंने Basically, सुना है, मैंने अकॉस के बारे में, ACOS is एक्चुअली मैंने सुना नहीं, बट वुड लाइक टू नो ACOS फ्रॉम यू. ACOS is basically consultants from Punjab region, and again SACA is another division. Some are part of SACA, some are part of ACOS. So they come together. आप meeting- दोनों के पार्ट हो? I'm the member of. We are working towards a lot of awareness for the consultants who are already there, because consultants को भी बहुत awareness की जरूरत है. तो उनके लिए भी ये लोग बाहर से Awareness, training. ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. प्लस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, these platforms, plus connection with the public government, पंजाब गवर्नमेंट, क्या authorities. क्या प्यार है पंजाब को कनाडा से? मतलब ये जो जोड़ी बनी है हेवन में, पंजाब कनाडा, कनाडा पंजाब, ये कहाँ से आया प्यार? क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? देखिए 1970 उससे पहले की क्या होता था, सारा यूके, हाँ, विलायत, इंग्लैंड. हाँ. किसी ने भी बाहर जाना वो इसे इंग्लैंड, इंग्लैंड, राइट. हाँ, राइट, राइट, So, राइट. तो वो एक यूके से प्यार था. उसके बाद अदर डायस्पोरा गोन टू कनाडा. तो जैसे जैसे
लेट क्यों बीच में बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे ऑस्ट्रेलिया कभी जाते हैं But again, वैसा नहीं हुआ। वो वैसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही बंदा पैशनेट है कि ऑस्ट्रेलिया जाओ। नहीं भाई, एक टाइम आया था जहाँ पे वो बहुत इजी थे, बहुत कनाडा मेलबर्न गए, बहुत पंजाब के बच्चे वो मेलबर्न। इजी था, स्पाउस जा सकता ये था। जब कब की बात है? 2003 to 8 7 8 उस टाइम की ग्रोथ सेक्टर है। बिना आइलेट्स के जाते थे। तो जब भी किसी कंट्री को स्टूडेंट्स चाहिए तो वही ऐसी चीज लेके आते हैं, स्ट्रिंजेंट अपनी वो पॉलिसी कम कर पॉलिसी देती चेंज है। करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि जब कंट्री को, जब किसी डेस्टिनेशन को बच्चे चाहिए हो तो आप नीचे कर दो, और जैसे उनकी वोट बैंकिंग आती है या कुछ आती है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्केपगोट बन जाते हैं, एजेंट फ्रॉड बन जाते हैं। एंड मिल्क करना है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर राइट्स देने हैं लोकल वोट बैंकिंग आ जाती है। क्यों? और सही कह रहे हो, होता है ऐसा? सर, इट इज ए पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री। So vote bank politics exists everywhere. So we can't say it why they are doing, because everywhere वो लोकल को issues जितवाना है। matter वोट करते तो हैं। उन्हीं के है। वोट तो सिटीजन्स के हैं ना। Citizens जब के ये हैं। सिटीजन बन जाएंगे तो आपको लगता है जो अभी हुआ 2023-24 में, इसमें एक पार्ट, पॉलिटिकल प्रेशर, एक तो कंसिडरेशन भी था एक कि रिक्वायरमेंट आप, थी। हाँ, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 5 साल आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होगे तो देयर इज ऑलवेज साइक्लिकलिटी। बिल्कुल। साइकिल जाती है, बूम भी आता है, बेन भी आता है, बुलिश भी होता है, बुलिश भी होता है। जैसे अभी वी आर सीइंग दैट रिसेशन की तरफ हम स्लिप कर रहे हैं, राइट? तो आप कह रहे हो एक तो साइक्लिकलिटी है, बिकॉज यू नो एनीथिंग व्हिच गो विल गो अप सो फास्ट, विल आल्सो कम सो डाउन। लाइफ का फंडा है। देन देयर इज पॉलिटिक्स। Politics, obviously, politics plays a major role in this, because again, when we talk about international student is not about India only. It's about across the world. Across, right? Like what happens, like Chinese came with a lot of money. They buy the houses. So when they buy the houses, there is a housing crisis came. So it's not about the international from India. It's ecosystem of the whole world that comes into picture. So then they put a ban on the sale of houses. Cap 2 years they cannot purchase. So a lot of policies they take, bring a lot of policies to control the housing market. But again, lot of things they have to do themselves also in their internal system to give lot of approvals, quickly approvals. So those need to be taken care by their local authorities. So coming back to love of Punjabis for Canada. That would resolve, because अगर कहीं अमेरिका में पंजाब बसता है तो वो ब्राम्पटन में है और सरी में है। सो एवरीवन, लाइक हर गली मोहल्ले से, मेरा पड़ोसी वो भी कनाडा है, मेरे राइट हैंड साइड में कोई रह रहा है, लेफ्ट साइड में, एवरीवन फ्रॉम माय कम्युनिटी, फ्रेंड्स, सब कनाडा में कोई ना कोई है। और कनाडा में भी ओंटारियो, टोरंटो, ओंटारियो 60%, रेस्ट इज अनदर कंट्री। सरी इज a very popular Vancouver. destination. So lot of communities there. But Vancouver महंगा है ना कनाडा से? Vancouver is bit expensive than Toronto, because Vancouver में expansion नहीं है, one side you have sea. हाँ. So you can't grow that. In Right. Ontario, another side already hills are there. So Right. geographically बहुत ज़्यादा expand नहीं हो सकता. Like Toronto is like expanding anything. Like I'm going there from last 10 years. Like when somebody came to me says I want to go to Brampton, I say Brampton is 70 to 80 square kilometers, even more than that. So where you want to go? Even from one place in Brampton East to go to the west, it take more than an hour just in Brampton only. One end from Brampton to Scarborough, where Centennial is, it takes 2.5 hours in public transportation. So there come the university living plays an important part of housing. Because when they provide housing to the students near to the colleges, near to the universities, so it helps them. It saves a lot of time for them, and it bring a lot of like opportunity for them to look for work. Because they don't need to worry about I have to go attend a morning class. At 8 a.m. I have to attend the class. They know my college is just 5 to 10 minutes. But then thank you for watching for us. But फिर वो एक तो पंजाबी का प्यार कनाडा के लिए, और फिर हमारे मामा चाचा बैठे हैं, हमें तो नीचे एकोमोडेशन। वो चेंज हुआ है अभी भी ऐसे ही है? वो चेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर आने वाले टाइम में ये बढ़ जाएगा।
क्योंकि वहां पे जो गए हुए हैं वो उनको भी अब 20-20 साल हो गए, तो जो 20 वाले उनके भी बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, तो घर तो वहाँ छोटे छोटे ही होते हैं ना, 2000 से 4000 या फिर आउटस्कर्ट में रहते हो, या वो स्मॉल सिटीज में रहते हैं, तो वहां से ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं। सो इन द कमिंग ईयर्स दिस ट्रेंड विल चेंज एंड स्टूडेंट्स वांट टू हैव accommodation near to the campus because then they can get work, they can get job there. Most On of the campus. universities are in city center, and if you are around you will get more jobs and you can attend your, और अभी ये भी शुरू हो गया है कि अगर आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो they are demoting, right? तो you gone are the days वहाँ पे आप जब बस पहुँच गए और खाली बस पैसे कमा रहे हो. If you are going for study you need to study, otherwise you will be demoted or deported. Yeah. Right now, like only those students can survive who will go there and study. Government is tightly controlling this thing, and they are checking their transcripts also. They're checking their information. Colleges have to send a report to the IRCC. तो पहले नहीं कर रहे थे ट्रांसफर? पहले नहीं होता था, ट्रांसफर चेक होती थी, कुछ नहीं शेयर होता था। अब को मैं अभी एक इंसिडेंट हुआ मेरे सामने, मैं लेकिन अगेन या प्लीज, समटाइम्स हमें दुख लगता है कि कंसल्टेंट्स कनाडा के क्या क्या कई बार करते हैं। मेरे पास अभी एक केस आया, तो स्टूडेंट इज ऑन PGWP एंड he get apply for extension. PGWP is postgraduate work permit. He applied for extension and files have been submitted, and we got a letter from IRCC that kindly share your transcripts of the college, because college have declined to acknowledge that you are their student. अच्छा जी, PGWP उसी ट्रांसक्रिप्ट में मिला है। कैसे होता है? तो देन वी आस्क देम, देन वहाँ के एजेंट्स ने नकली ट्रांसक्रिप्ट बना के PGWP उनको ले दिया। तो ये तो गवर्नमेंट की, उनकी गवर्नमेंट का भी फ्लो है। That's why they controlled it. Now every document which we submit, every offer letter, every PAL letter is now verified by the government. क्या बोला उन्हें? PI letter, PAL, Provincial Provision. Attestation Letter. This is required to submit a file in Canada for study purposes. Provincial Attestation Letter. तो इसके बिना फाइल लगी नहीं सकती कैनेडियन हाई कमीशन में। मैं कहीं पढ़ रहा था, इनफैक्ट द रीजन आई एम आस्किंग एवरीथिंग एंड गोइंग डीपर इज, मुझे पता है कुछ चीज़ें नहीं पता, बट जो ऑडियंस है ना, आइडिया इज जैसे हम रोज बात करते हैं तो हमारे लिए PAL, RCIC, IRCC हमारे नॉर्मल टर्म्स है, तो हमें तो पता है, बट वो स्टूडेंट को नहीं पता जो पहली बार जा रहा है, और ये जो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट शुड नो द राइट प्रैक्टिसेस, they should know the right processes, so that when they come to you, like कोई उनको, no one should take them for a ride. ऐसे एजेंट के पास ना जाना पड़े जहाँ वो उनका तो डॉक्यूमेंट करके निकल गए, पर जिसने डिपोर्ट हुआ होगा उसकी लाइफ खत्म हो गई, और वो आके बोलेगा कि आप पंजाब तो जाओ मत, खराब है, जॉब नहीं है। वही बोलेगा ना, that's why they negativity creates, because जो 5% लोग हैं जिनको इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, 95% लोग वहाँ जिंदगी बहुत अच्छे से जी। मेरे 2 अपने पक्के दोस्त हैं, वो पढ़ाई के लिए गए, पढ़ने के बाद गए, और दोनों बैंकों में गए, एंड टू बी ऑनेस्ट एट में एनवी देम कि यार अच्छी एयर में रह रहे हैं, बैंकों में रह रहे हैं, क्या वेदर है, वर्क लाइफ बैलेंस है, बिल्कुल राइट, एंड देयर किड्स आर सेफ, राइट, बट देन वी गेट टू नो दिस आल्सो कि चोरी हो रही है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहे हैं, पर वही आप कह रहे हो 5% है, 5% वो तो हर जगह है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएस में आप देखिए आजकल क्या हो रहा है, बिल्कुल, यूएस में क्राइम कितना ज्यादा है, राइट, तो ऐसा थोड़ी कि बच्चे यूएस जाना बंद हो, बिल्कुल नहीं, आपके साथ हूँ मैं। तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन को सिर्फ उसके 5% नेगेटिविटी की वजह से उसको नेगेटिव सेल होता है ना, नेगेटिविटी ज्यादा सेल्स, नेगेटिव ट्रैवल मच फास्टर देन द पॉजिटिविटी, राइट। सो वही हो रहा है कनाडा के केस में। तो मेरा सभी बच्चों से ये है कि आप खुद सर्च करिए। एक कॉमन चीज़ मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा बाहर जाने को डिसाइड कर रहा होता है, उसका 100 में से, पर्टिकुलर जब कनाडा की बात कर रहे हैं, 90% लोगों का ये होता है कि हमने वहाँ जाके सेटल होना है। तो मैं कॉमन सी चीज़ बोलता हूँ, लोग कहते हैं ना कि काम नहीं है, वहाँ सेटलमेंट नहीं है, मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि भाई आप अपने आसपास देखिए, आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास UK का पासपोर्ट है,
कितनों के पास यूएसए का पासपोर्ट है और कितनों के पास कनाडा का पासपोर्ट है. तो आई एम श्योर यू विल आल्सो से कि कनाडा का पासपोर्ट ज्यादा के पास है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच कंट्री इज मोस्ट वेलकमिंग टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. प्लस कनाडा की ऐसी कंट्री है जहाँ पेरेंट्स सुपर वीजा लेके आपके साथ 7 साल तक रह सकते हैं. सुपर वीजा क्या होता है ये पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वीजा होता है जिनकी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड इनकम होती है, तो वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं. तो वो लगातार 5 साल तक रह सकते हैं और एक्सटेंडेबल 2 years तक एक्सटेंड हो सकता है. अब ये अपॉर्चुनिटी की अभी भी हो रहा है, मतलब ये अभी भी चल रहा है. if you have you're earning well, you can call your parents that you're paying your grandparents. taxes well, and Obviously taxes, and you have a threshold income. तो क्या है वो? Income like $36,000 to depending on the number of family members you have. Let's go deep. और बताओ, मतलब 36,000. मैं सर्च कर अच्छा नहीं again. There is a particular income समझ गया. LICO. Like there is a LICO. they have to last year income. अच्छा. उनको वो कंसिडर करते हैं. So you're saying कि student are still going to Canada, and now who are going, they have a better chance to get employment because there is not, like there are better quality students going who are more stringent, and then इतना बड़ा Canada है तो jobs तो है ही, काम तो वहाँ है, काम की दिक्कत नहीं है, but आप कहाँ रह रहे हो, क्या skills के साथ जा रहे हो और क्या आपको expectation बताई गई है, वो डिफाइन करते हैं बहुत चीज़ें. देखिए पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है सभी जगह है, प्रोवाइडेड है कि आपको ये विज़न लेके चलना है कि मैं काम करने के लिए मेरे को दूर जाना भी पड़ेगा, मेरे को हर चीज़ ब्रम्पटन में नहीं मिलेगी, हर चीज़ वैंकूवर में नहीं मिलेगी, हमें अदर सिटीज़ में जाना पड़ेगा. जैसे ऑटवा में मेरे खुद के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 जॉब्स. कनाडा की कैपिटल है ना ऑटवा? कैपिटल है कनाडा. और लोगों को पता नहीं, मतलब लोगों के लिए टोरंटो वैंकूवर है ना. हाँ. और कैलगरी. तो ऑटवा में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 3 जॉब्स हैं. दे हैव टू चूज विच जॉब दे शुड गो. सो ऐसे कई सिटीज़ हैं, चाहे हैमिल्टन है, चाहे वो एबसफोर्ड है, एडमिंटन है. सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर द स्टूडेंट्स. तो ये तो बच्चों को एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि मेरे को अपने रिश्तेदार के घर रहना है. मैं तो उल्टा बोलता हूँ, यू नो, मतलब अब पता नहीं कितना वैलिड है, बट इफ़ यू गोइंग अब्रॉड और वहाँ जाके इंडियन स्टूडेंट रह रहे हो, इंडियन फैमिली रह रहे हो, मत जाओ ना. आपको सीख तो रही हो, सॉरी टू से, आप इधर से फैमिली छोड़ के वहाँ फैमिली रह रहे हो. एंड आई मीन आई बीन फॉर्चुनेट टू गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, एंड लाइक दैट इज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, बिकॉज एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, दूसरा आई बिकम सो कॉन्फिडेंट, थर्ड आई हैव फ्रेंड्स एंड कनेक्शन एवरी कंट्री, एवरी सिटी. मैं आज सबको बोलता हूँ, मतलब मेरी वेल्थ ये है कि मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ, मैं डिनर अकेला नहीं करता. That's really wonderful. Like same here. Like we have sent so many students. मैं किसी रेस्टोरेंट, किसी मॉल में गया, कोई ऐसी जगह दिन नहीं है कि मेरे को वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स नहीं मिले. तो कितनी प्राउड फील होती होगी? बहुत प्राउड फीलिंग होती है when I go and take someone is working in a Burger King, in a restaurant, in a shopping mall. Like somebody comes with their family. तो 50,000 स्टूडेंट आपने भेजा, आप तो इलेक्शन लड़ सकते हो. I'm not a citizen. अब बन जाओ. No. India is. मैं तो पक्का, मैं 50,000 स्टूडेंट खाली कनाडा भेजे होते हैं. तो we have done accommodating more than 100,000 students all across. Right, but then अगर मैं कनाडा में स्टूडेंट भेजो 50,000, तो और हमें सिटीजनशिप क्यों नहीं ली? Because of some regulations, some businesses, that by taking citizenship it puts some restriction on you. So that is the primary objective. Like you can't buy agriculture lands, all that stuff. And आपकी रूट्स पंजाब है. रूट्स मेरी पंजाब है, फैमिली सारी पंजाब में थी, तो इसलिए उस वजह से और ये भी है ना कि आज के टाइम में सबको, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ सब बाहर जाओ, पढ़ के आओ, पर वापस आओ. एक्शन तो इंडिया में. ग्रोथ इज देयर. यू नो, गो गेट द राइट एजुकेशन, गेट अ बिगर एक्सपोजर, थोड़ा बाहर निकलो, हाथ वाथ गंदे करो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, लाइफ स्किल सीखो, एंड देन इंडिया में इज सो मच ऑफ पोटेंशियल. I have so many friends who have not only UK में, Australia में, even Canada में, they have their citizenship, they have like best of the like cars and what not. They're like यार action तो इंडिया में है, next growth तो इंडिया में है. Like obviously once you achieve in your life, you achieve something, you get your citizenship over there. Like citizenship goal is around about 6 to 7 years of journey. So if you go there at the age of 25, by 32 you will be citizen. If you did
everything right. तो then you ये वाली बात कर सकते हैं कि क्या जर्नी होती है, क्योंकि मेरा ही मानना है कि या तो जब वी आर अर्निंग वेल जब मूव करो, सो दैट यू डोंट नीड टू वर्क ऑन पेट्रोल पंप्स एंड ऑल, व्हिच नथिंग अगेंस्ट इट, बट या फिर जितना जल्दी आ सकते हो जितना जल्दी जा सको वो बहुत अच्छी चीज़ है. क्यों? अब +2 के बाद बच्चे सोचने लग जाते हैं मैं क्या करूं. तो +2 वाला बच्चा अगर वहाँ पे डिग्री के लिए जा रहा है, 3 साल के कोर्स के लिए जा रहा है या 4 साल की डिग्री के लिए जा रहा है, तो वो 4 साल का में उसको एक्सपोजर कितना मिलेगा. और आज की डेट में बात करूं एक्सपेंडिचर की, वो एक्सपेंडिचर अगर इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना और कनाडा में पढ़ना सेम ही है. राइट. कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. डेल्टा ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं. इफ़ यू आर स्टडिंग इन ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहते हैं, यू हैव टू पे फॉर दैट. Obviously when you pay you get what you deserve. राइट. Like my couple of my family members, they studied from top universities and now they are getting good jobs. So quality education always play in. So give me, I mean, I'm not trying to put you on a spot, but give me some names of good universities and good colleges. That doesn't mean others are not, but I know UFT is there, Dalhousie is there, Windsor is the University of Windsor is there, then NAIT College is there, SAIT College is there, then KPU is there, Centennial is there. Like I will be biased if I don't say everyone, but because you know we send students to public colleges and university only, and most of the public colleges and university have full-fledged infrastructure. They are not like you can say they are lacking in infrastructure. Like either I talk about Ottawa in Algonquin College or Sioux College or Fleming College, like everywhere, every campus, have their unique specialty. So it's not like that the one is better, one is not. right. Better. Every अपने USP है सबके. सबकी अपनी USP है. Every institution runs specialized programs in a particular field, like GBC hospitality के लिए, Humber business के लिए, Seneca Centennial technology के लिए, now Sheridan also in computers के लिए. So it builds over a period of time. So all these institutions are 50 years old. These are not relatively new. इस वाले माइंडसेट को कैसे चेंज करें? आई गेस 70-80% हो गया, 60-70% हो गया, बट 30-40% अभी भी है. और कहीं कहीं सिटी में, कहीं स्टेट्स में, इंडिया में अभी भी है कि यार 80 नहीं चाहिए एकोमोडेशन, मैं वहाँ वीज़ा आएगा वहाँ जाऊँगा, ढूंढूंगा या फिर अपने मामा चाचा के रहूँगा. वो कैसे चेंज कर सकते हैं? सर उसके लिए ना, और उनकी भी गलत नहीं है कि देखो वो सपोर्ट है ना. लड़की है तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी हमारे ईश्वर के पास जाए. तो ये मेरा उल्टा है. इवन if I give you some number, around 60% of my students or 65% of students are female students. I tell you one thing. तो मैंने ना मैं हॉस्टल में रहा हूँ 3 साल. तो मेरी जिंदगी का जो बेस्ट पीरियड है ना, बेस्ट टाइम, बेस्ट लर्निंग वो हॉस्टल लाइफ से आती है. एंड सेम इज विद व्हेन यू स्टे विद योर unknown. yes, you adopt their culture, you give them your culture. so true. Such a great learning. मुझे ये जब बोल रहे हो ना, मुझे म्यूजिक लग रहा है, क्योंकि एक तो आई बिलीव इन दिस एंड आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट. आई कैन स्टे विद चाइनीज, नाइजीरियंस, एंड बिकॉज आई हैव स्टेड विद देम आई नो देयर कल्चर्स. आई नो कि क्या नहीं बोलना या फिर कैसे नहीं ऐड करना, एंड दैट्स अ सुपर पावर. ये लाइफ स्किल है. When you stay in hostel with these accommodations, your personality differs. क्या पंजाब के एक छोटे से विलेज से, सिटी से निकल के आप लंदन, टोरंटो, वैंकूवर में आप किसी और जो मे बी साउथ इंडिया, मुंबई से हो या कोई इंदौर से हो, कोई हैदराबाद से हो, कोई दिल्ली से हो, तो यू लर्न लॉट ऑफ. तो हम बाहर पढ़ने के अगर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं. हम एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं. सही बात है. और वहां जाके भी अगर हम उसमें जोन में रहेंगे कि राइट, तो फिर हमारी लर्निंग पे थोड़ी डाउट आ जाए. बट देन उनके लिए देखो ना, नॉन डेविल इज बेटर देन नॉन डेविल. मुझे पता है कि मैं अपने परा के साथ रहूँगा, वो भी वही खाना खाएगा, मैं भी वही खाना खाऊंगा, मेरे पैसे बचेंगे. प्रॉब्ली जो आप कह रहे हो मैं तो एग्री करता हूँ, तो प्रोडक्ट हूँ, बाय फोर्स हुआ है, बाय डिजाइन हुआ. बट अगर मैं भी अपनी बेटे को भेजूंगा कहूँ यार एक दो इंडियन तो होने चाहिए आसपास. ये नहीं होना चाहिए कि सारे इंडियंस हैं या फिर सारे मोहल्ले वाले, तो फिर जा ही क्यों रहो, इधर ही रहो. देखिए उसको काउंटर करने के लिए क्या है कि कम्युनिकेशन आज की डेट में वेरी क्विकली.
कॉल, व्हाट्सएप कॉल्स, और कोई भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसमें ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एन इशू. You can reach in one place to another place within 30 minutes. Right. So I believe they have to understand this thing. They have to give them this assurance that somebody is there for you to help them in any point of time. कभी आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए. जहाँ तक रही ब्रदर की बात, वो चीज़ तो रिप्लेस नहीं हो सकती. अगर मेरा भी भाई है तो मैं भी अपने भाई के घर जाके ही रहूँगा. बस खाली एक ही कम्युनिटी या एक ही इंडियंस में भी लोग फिर रीजन होना शुरू हो जाते हैं. गुजराती, मराठी, पंजाबी. आई एम लाइक यार तुम्हें फिर एक्सपोजर क्यों मिल रहा? फिर तो तुम छोड़ो ना, ग्रेटर नोएडा आ जाओ, बड़ी सी कोठी ले लो, यहाँ ऐश करनी यहाँ कर लो फिर. बिकॉज क्या होता है कि देखो, एक +2 के बाद बच्चा जा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक. हाँ. तो वो उसको बट +2 वाले यूनिवर्सिटी में नहीं रहते. +2 वाले पब्लिक वाले पास तो होती नहीं अकोमोडेशन. पब्लिक कॉलेज के पास अकोमोडेशन ज्यादा नहीं होती. जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है. $2,000 से. बट जो अंडरग्रेड के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पहला सेमेस्टर मैंडेटरी, वहाँ पे पहला सेमेस्टर, पहला साल मैंडेटरी होता है, तो वहाँ पे एक्सपोजर होता है. राइट. पर अगेन मेरे खुद के कई नॉन बंदे हॉस्टल में रहे हैं, यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप बने हैं अक्रॉस द कम्युनिटी. तो आज की डेट में बहुत अच्छे, बहुत सक्सेसफुल है वो. सो बेसिकली हमें ये माइंडसेट बिठाना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने का पर्पस क्या है. एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और दूसरा लर्न न्यू थिंग्स, इंडिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंस. मैं खुद अकेला जाके अननोन सिटी में जाके मैं ट्रांसपोर्टेशन ले एक जगह से दूसरी जगह अपने आप में ये लाइफ स्किल है. हाँ. I myself went through the public transportation to see the hardship of the student. Right. Same. तो अब मैं बच्चे को बता सकता हूँ कि भाई अगर आपने सरी में रहना है तो आपको, अगर आपने कैपिलानो पढ़ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक आपके लिए बहुत मुश्किल है. सो यू हैव टू स्टे इन नॉर्थ वैंकूवर. अगर आपको सेंटेनियल या ब्रैम्पटन में ट्रैवल करना है तो आपको स्कार्बरो में रहना पड़ेगा. सो मैं खुद बाय बस, ट्रैम. सेम. आई गेस मैं क्लेम कर सकता हूँ, I walked in at least 500 cities all across for like miles. UK Ireland तो मेरे और ऑस्ट्रेलिया तो मेरे बैक ऑफ हैंड में. But and I can see that आपको कनाडा की इतनी ही अंडरस्टैंडिंग है. और ये सबके लिए है ना. Anyone who is trying to build a business in this space and really want to do and help students and also make money. There are lots of money in this business. But at least go and at least walk the talk. इतने सारे एजेंट्स होते हैं, आज तक गए नहीं है और यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे होते हैं. ये तो देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो YouTube, Instagram पे तो फ्री में बट रहा है. तो हम भी YouTube में बात करेंगे. That's okay. We are, our audience knows what we are talking. And there's depth. They know कि वो ये सुन रहे हैं तो उनको आपके बेल्ट के अंदर 50 स्टूडेंट की ब्लेसिंग्स है. बिल्कुल. मैं बताता रहा हूँ कि मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ, बच्चा है मेरे पास, कहते हैं सर ये मेरा बेटा है, मैं आपके थ्रू आया था 2011 में. आज मैं जब मेरे फेसबुक पे बहुत सारे हैं तो उनकी अचीवमेंट्स मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है. तो एक प्राउड फीलिंग आती है. और एक आज की डेट में देखिए, सबसे बड़ा नॉबल कॉज है किसी को अच्छे तरीके से गाइड करना. टोटली. एंड उस नोबल तरीके से आपको पैसे कमा रहे हो, आप एथिकली कमा रहे हो उसमें. मैं तो कहता हूँ ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है ना. अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने बदनाम कर दी, या मीडिया को कभी भी होता है, बट एंड इनफैक्ट द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज ऑलवेज दिस, हाउ कैन वी ब्रिंग द सक्सेस स्टोरीज ऑफ दिस इकोसिस्टम. ऐसे में आपको बीच में टोका मैंने, बट जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था कि स्टडी अब्रॉड का मतलब नहीं, आप वहाँ जाओगे और रेड कारपेट्स होगे और वहाँ से वापस आओ तो रेड कारपेट्स होगे. इट विल मेक यू प्रिपेयर फॉर लाइफ बैटल्स, because you will be probably giving more exposure and more, you will be in a situation which probably a normal person who had not gone out of the city or a country might struggle, but probably you will navigate. अभी बैठे बैठे मैं आपसे बात, आपका जो आता था मेरे दिमाग में कभी एक बड़ी अच्छी सी एक बात आई. आज से 7-8 साल पहले IIT दिल्ली, मुंबई, मद्रास, ठीक है, NITs भी चाहे, वहाँ पे लोकल क्राउड कितना होता है. सारे बाहर से आते हैं. क्रीम आती पूरे इंडिया की. गुड पॉइंट.
ठीक है, गुड पॉइंट। तो वो वहाँ कहाँ रहती है? हॉस्टल में रहती है। तो जितने भी आज की डेट में स्टार्टअप्स बने हैं, जितने भी लोगों ने तरक्की करी है, वो घर से बाहर निकल के ही करी है। मतलब it's not offense those who have done good in the cities, but that is a point. Like Point. you Absolutely. have to break the ecosystem. इनफैक्ट मैं तो ये कहना है, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो 3-4 चीज़ें क्वेश्चन करता हूँ कि पढ़ना ही क्यों है? छोड़ो, मैं तो हम तो ऐसे बिजनेस है कि पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे कमाएंगे। मैं कहता हूँ पढ़ना क्यों है? यूट्यूब है, सब कुछ है, वहाँ पढ़ो। ऑफ कोर्स देन वी हैव आवर ओन रीजंस की सब सेल्फ ड्रिवन नहीं हो सकते। बिल्कुल आउटलायर 1-2% होते हैं, ड्रॉप आउट करके एलॉन मस्क बन जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। राइट? तो मैं तो फिर भी क्वेश्चन करता हूँ पढ़ना क्यों है? पढ़ना ही तो यूट्यूब में सब कुछ है। पर इसके बाद अगर इतना पैसा लगा के इतना दूर जा रहे हो, यू नो, एक तो घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आई मीन फॉर्चुनेट कि मैं मेरठ से दिल्ली आया, देन आई गॉट फॉर्चुनेट कि मैं दिल्ली से नॉटिंघम गया, राइट? बट एक तो घर से बाहर निकलना, चाहे इंडिया में हो या बाहर हो। दूसरा, अगर आप इंडिया में हो या बाहर हो तो अपने कंफर्ट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। खाली वो जो नोन आपके 3-4 दोस्त है या आपके रिश्तेदार उनके साथ रह के आ जाओगे तो ठीक है, आपको डिग्री मिल जाएगी, बट लाइफ स्किल नहीं कमा पाओगे। तो ये हमें सोचना, ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं, जो हम जा रहे हैं, हम एक एक्सपीरियंस लर्निंग के लिए जा रहे हैं, हम एक एक्सपोजर लेने के लिए जा रहे हैं। और जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये अब रिटर्न आपको मिल जाएगी लाइफ में। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आप जहां मर्जी से एक्वायर करो, ये वेस्ट नहीं जाती। नथिंग वेस्टेड। आई एम ए पीएचडी। अब somebody टेल कि यार पीएचडी और आज मैं कंसल्टेंट हूँ, इसमें क्या रिलेशनशिप है? बट व्हेन आई टॉक टू द स्टूडेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट इन देयर लैंग्वेज, इन टेक्निकल लैंग्वेज, they come to me, they come call me regarding their problems. I can tell them how. आपने किस में किया डॉक्टरेट? I'm a mechanical engineering, industrial and production engineering. तो आपने डॉक्टर उसमें किया? PhD in industrial and production engineering from NIT Jalandhar. तो आप तो डॉक्टर प्रोफेसर सुमित जैन हो। You can say that, but right now I have changed my profession to this. But it's still education only. Education, nobody can take away from that degree. इनफैक्ट जब भी मैं कहता हूँ एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, और टेक्निकल नो हो तो कभी नहीं जाता। कभी नहीं जाता। Very interesting, very interesting. So abhi, you know, I believe Canada has undergone lots of policy changes. Do you want to, you know, share those changes? You know, I don't know how much time you have, but in quick, whatever as per your comfort or as per your timings, what are the changes happen in Canada? From last 1 year, a lot of changes. Like there is a cap which have been introduced last year. PPP partnerships have been closed down. Work rights, like 24 hours a student can work. 24 hours in a week? In a week. Spouse पहले क्या था? पहले 20 hours से। तो अच्छा हुआ। अच्छा बड़ा वो। Spouse can only go in masters along with the student. Earlier क्या था, डिप्लोमा में भी spouse वीजा। तो फिर हस्बैंड वाइफ दोनों जाते कमाते थे। और साउथ अमेरिकन मार्केट, वियतनाम, अदर कंट्रीज मार्केट स्पाउस पे डिपेंड होती थी। अच्छा। तो ये चेंजेस आई। उसके बाद रिसेंटली इन्होंने अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कैपिंग भी कम कर दी। 470 हुआ, फिर 437 हुआ। 437 पहले 470 हुआ था, 437 600,000 था। अच्छा। तो उससे फिर कम होके आया 437। तो इसमें भी मास्टर डिग्री ऐड कर दी, उसमें भी वीज़ा सक्सेस रेट 60% लेके चल रहे हैं। तो इट विल ब्रिंग अराउंड अबाउट 150 to 200,000 स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली जो ये इंडिया से कितने बच्चे जाते थे जब आपने जब हाईएस्ट भेजा तब 2000, जब हम बात करें 2009 की, तब तो इंडिया से 500, 800, 1000 जब आपने स्टार्ट किया था। मीन्स जर्नी बताओ थोड़ा अपनी और मार्केट की। 2009 में SPP इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले SPP स्टूडेंट पार्टनर्स प्रोग्राम। ओके। उससे पहले रिजेक्शन रेट वाज कि 10% वीज़ा लगता था, 90% रिजेक्शन होता था। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई। इन 2009 दे ब्रिंग SPP, स्टूडेंट पार्टनर्स प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या किया इसमें, उनको पता है कि इंडिया में ना इनकम का लोगों के पास पैसा है लेकिन वो रिटर्न नहीं भरते। तो उन्होंने वो कंपोनेंट ही खत्म कर दिया बीच में से। फंड्स दिखाने नहीं। तो फिर आइलेट्स का स्कोर किया 6 बैंड। तो इस तरीके से उन्होंने बेसिक चीज़ों पे रख के उसको बच्चे को वीज़ा देना शुरू किया। कि कनाडा की ग्रोथ 2009 के बाद हुई है। 2009 में SPP आया और SDA, उसके बाद SDS आ गया। What is SDS?
स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम, तो ये 2016-17 के अराउंड आया। तो इसमें उन्होंने GIC कंपोनेंट ले आए। वो पहले बैंक लोन था, फिर GIC आया, तो फिर आइलेट्स की रिक्वायरमेंट 6 ईच हुई। तो ऐसे ऐसे चेंजेस होती आज की बात बड़ी 6 से ईच हुई। देन अगेन ओवरऑल 6 से ईच इन ऑल द अच्छा, 4 अच्छा, मॉड्यूल्स अच्छा, 6। तो देन अब ओवरऑल 6 पे आई कपल ऑफ इयर्स अगो। तो ये बहुत जर्नी हुई। कनाडा बहुत प्रोएक्टिव रहा। कोई ऐसी कंट्री जिसने 15 साल लगातार स्टूडेंट को वेलकम किया दुनिया में कोई और नहीं है। राइट। तो एक बार तो उसको डिक्लाइन नहीं होना बनता ही है था। वो तो। हाँ, अगर कंसोलिडेशन तो बनता ही है। इट वाज अ गोल्डन एरा व्हिच हैपेंड। नाउ 2-3 साल में बहुत सारे फ्लाई बाय द नाइट ऑपरेटर मूव हो जाएंगे। हो जाएंगे, And- क्वालिटी के कंसल्टेंट रह जाएंगे। बच्चे का माइंडसेट भी यही बनेगा कि मैंने वहाँ जाके पढ़ाई करनी है, अच्छा सेटल होना है, तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। उसका फोकस पढ़ना रहेगा। पहले क्या होता था, बहुत सारे अदर बी मार्केट होती है, जैसे LMI ये हो गई, जॉब ऑफर्स हो गई, ऐसी चीज़ों में बच्चे बहुत फंसे। तो वो सब गवर्नमेंट ने क्लोज डाउन कर दिया, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। आपकी कितने मेरी टीम है? Like in Jalandhar, we have close to 100, and in Toronto and Edmonton, we have around 10 staff members. तो अराउंड 100 प्लस टीम है आपकी। 100 plus team है। जब आप शुरू में काम करते होगे तो आपके पास कंट्रोल रहता होगा। जब 1 से 10 हुए, 20 हुए, 30, ऐसा हुआ कभी जहाँ पे विदाउट योर नॉलेज या विदाउट इंटेंशनली योर टीम स्टार्टेड मिस सेलिंग और मिस इन्फॉर्मिंग? नो, देखिए मैं अपने ऑफिस में डेली होता हूँ। मैं अगर इंडिया में हूँ, मैं ऑफिस में होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे ऑफिस में गारंटी वर्ड कभी नहीं यूज़ किया जाता कि तेरे को वीज़ा की गारंटी। ये हमारे SOP में है ही नहीं। वी आर देयर टू हेल्प यू इन योर जर्नी टू स्टडी अब्रॉड। आपको इंडिया में पूरा फाइल प्रिपरेशन एवरीथिंग वी विल डू। वीज़ा इज विद द हाई कमीशन। वी आर नेवर गारंटी एनी काइंड ऑफ वीज़ा। Any good practices which you want to suggest students to increase their chances to get visa? Like whenever you write your SOPs, read it very carefully. And when you are submitting your file, always go thoroughly. मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ, मतलब कि अगर हमारे पास क्या है कि in our organization we have multiple checking inspections points where one prepare the file with the student, and collaboration with the student we make the file. Then we give the student to check. Then they check again, come to another level of inspection. Then in the end it come to me. So मैंने कई बार देखा कि बच्चे डेट ऑफ बर्थ भी गलत डाल के नीचे साइन कर देते हैं। फिर वीजा नहीं आता तो आप पे आते हैं। नहीं वो मैं चेकिंग वैसे के लिए कह रहा हम हूँ, हैं। आप करते हो, बट देन बाकी कई जगह नहीं होता ना। गलतियां दोनों जगह ही है। गलती दोनों जगह ही है। बिल्कुल ना। तो हम चेक हमारा कई हमने ऐसी चीजें गलतियां पकड़ते हैं, सिली मिस्टेक कि यार बेटा तुम्हें ये चीज तो पता नहीं चाहिए थी ना। और कैसे लोग, मतलब क्या ये तो ये डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, ह्यूमन एरर है। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई जो ये स्टडी, अब बच्चे हैं कि जब वो फाइल लगाते हैं या अप्लाई करने जाते हैं, वो एजेंट्स को बोलते हैं भाई आप ईमेल आईडी बना लो। अरे भाई क्यों भाई? ईमेल आईडी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कॉलेज के साथ तुम्हारी कम्युनिकेशन है। कॉलेज ने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी तो उस ईमेल आईडी पे भेजनी। आप लोग नहीं करते? नॉट एट ऑल। ये तो मैंने ऐसे एजेंट्स, मैं नाम नहीं ले सकता, और ऐसे एजेंट्स हैं जो लाइक सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स है, उनके ऑफिस में ये हो रहा है कि कंसल्टेंट उनके ईमेल बना रहे हैं और कम्युनिकेशन उनके थ्रू हो रहा है। अरे और ये चीज यूनिवर्सिटी को भी पता है, यूनिवर्सिटी को पता है, एजेंट्स को भी पता है, उनके ओनर्स को भी पता है। पर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ट्राई टू टेल द एजेंट्स नॉट टू डू इट। लाइक देखो कहीं लोग इसलिए करते हैं कि जो जा रहा है वो बच्चा है, वो 17-18 साल का बच्चा है या यंग है, उससे अनइंटेंशनली मिस हो जाता है, जिससे उनका वीजा चला जाता है या उनका ऑफर लेटर नहीं कंफर्म किया, एक्सपायर किया। तो हो जाता है कुछ लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इंटेंट ठीक है, बट मोस्टली तो इसलिए कर रहे हैं कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। बट अगेन स्टूडेंट हैव टू लर्न दिस थिंग। हाँ, क्योंकि उसको देखना है, ईमेल आईडी एक ऐसी चीज है उसको डेली देखनी पड़ेगी। अगर वो अभी से हैबिट बना लेगा, हाँ, एग्जैक्टली लाइफ में हर चीज हमारी आपकी रोज शुरुआत कहाँ से होती है? डॉक्यूमेंट ईमेल से होता है। सो ईमेल एब्सोल्युटली, ईमेल तो लाइफ स्किल है, और आगे जाके जॉब्स में ईमेल से स्टार्ट ही होता है। तो ये बेसिक चीजें नहीं होती। आई एम टेलिंग यू कि यार अब हम जब IRCC में फाइल लगाते हैं
तो वहाँ पे IRCC की नोटिफिकेशन हर बच्चे को जाती है, वो ईमेल में जाती है। अब बच्चा वो नोटिफिकेशन चेक ना करे, अब एज ए कंसल्टेंट मान लो मैंने 1000 फाइल लगाई, तो मैं डेली सबकी चेक कर नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट, फिजिबल भी नहीं है। तो ये अगर तो एक ईमेल नहीं होना चाहिए, और ईमेल स्टूडेंट अपने आप करे, फोन अपनी रिसर्च खुद करे, ताकि उसको पता हो कोर्स क्या जा रहा है, किस कोर्स में जा रहा है, किस कॉलेज में जा रहा है। मैं भी आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा अपना, आपको ये पसंद आएगा। ये हमने एक स्टडी अब्रॉड बड़ी इंटरनेशनल बनाया, सैबी बनाया, इसीलिए कि स्टूडेंट जो है या तो आपके यहाँ आता है बिल्कुल खाली होके, जान से आप बता दो कहाँ जाना है, या फिर वो इधर उधर की आधी अधूरी नॉलेज लेके आता है और आप सही बात भी बताओगे कि नहीं ये सही है। तो हमने बनाया स्टडी अब्रॉड बड़ी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर सेम पर्पस कि स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट देमसेल्फ on the genuine data of universities, study hubs, IRCCs, and then they have basic understanding. And when they come to you, they're not coming empty hand or empty mind. प्लस आज की डेट में ना बच्चे को रियल काउंसलर्स की जरूरत है, जो हैंड होल्ड कर पाए, जो हैंड होल्ड करे, उसको बताए कि भाई अगर तुम्हें करियर में ये जाना है, ये ऑप्शन बेटर है। राइट, एप्लीकेशन एडमिशन तो सब कर लेते हैं, वो तो प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं, वो सेल्स पिच नहीं है आज, वो रियल काउंसलिंग इज द नीड ऑफ द आवर, कि बच्चे को पता हो गया मेरे करियर में क्या चीज बेटर है। अब एक बात बताइए, एक बीए की लड़की है, ठीक है, अब कनाडा ने PGWP प्रोग्राम स्ट्रिक्ट कर दिए, वो कहते जी मेरे को वर्क परमिट वाले कॉलेज में भेज दो, भाई उसको ये सिप कोड में। अब सेल्स वाला बोलेगा ठीक है भाई तू ये प्लम्बिंग का ले ले, अब बीए वाली लड़की में भी तेरा प्लम्बिंग को इंटरेस्ट है, और फिर वो कहता हम सक्सेसफुल नहीं हुए। तो हमें ये चीज देखनी है कि बच्चे को कौन सा कोर्स बेस्ट फिट है, और बच्चे को भी खाली ये माइंड में रखने चलना कि मेरे को बस मेरा सिप कोड है, मैं चाहे वर्क परमिट है मैं इसमें चला जाऊँ, अगर उसमें इंटरेस्ट है वो तो देखना है। पर बात वही आ जाती है कि हमें बहुत चैलेंज फेस करते हैं कि बच्चे कहते नहीं जी हमने ब्रांडन में सुनना ही नहीं। पीछे किसी पब्लिक कॉलेज का बच्चा फेल हो गया, तो वो मेरे को बोल रहा है कि सर आप वहाँ पे सिफारिश लगा दो मेरी। आई गॉट समटाइम्स कॉल, थ्रेटनिंग कॉल्स कि जी हमारे बच्चे को पास करवा दो। तो ऐसे में क्या करते हो आप? बस हाथ जोड़ लगाइए, हमारा काम तो वीजा का ना। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपके नहीं, वो फोन पे ही है, चलो वो तो कोई, बट ऐसे केस हुए यहाँ पे होते हैं, क्योंकि अच्छा है तो उनका है, बुरा है तो हमारा। So whatever bad thing happens to them because of you, because of us. अच्छा है तो उनकी किस्मत। जब अच्छा हो रहा तो हमें कोई नहीं बताता, वो हमें तब बताएंगे जब वो फंस जाएंगे। मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप बच्चे का लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने पास जरूर रखो, स्टूडेंट आईडी का, और आप उनकी खुद जाके उनके लॉगिन में जाके ट्रैक करो। देखो आजकल के जो भी पेरेंट्स हैं 40-45 इयर्स के हैं, तो दोज आर वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप चलाना आता है, ईमेल चेक करना आता है, लॉगिन अपने इंटरनेट बैंक की लॉगिन आती है, तो बच्चे का लॉगिन भी चेक कर सकता है। बिल्कुल, गुड पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। बच्चे का लॉगिन चेक करें, देखो भी बच्चा क्लास लगाने जा रहा है कि नहीं जा रहा, बच्चे के क्या ग्रेड आए हैं, बच्चा क्या आपको झूठ तो नहीं बोल रहा कि जी मैं सभी में पास हो गया। पॉइंट। मैं तो बच्चे पेरेंट्स कई बार आते हैं मेरे पास कि जी हमारा बच्चा कह रहा है वो तो पास था लेकिन बाद में पोर्टल में फेल हो गया। मैं हमेशा कॉमन होती है, मैं कहा तुम्हारे मन में जो भी चीज़ लिखना चाहते हो ना तो मुझे ईमेल करो, मैं वो ईमेल कॉलेज को फॉरवर्ड करूंगा ताकि तुम्हारे साथ अनजस्टिस ना हो, तुम्हें जो सोल्यूशन चाहिए वो मिल जाए, पर मुझे मेल में जो राइट है वो लिखो। अब मैं वो क्या बताऊं, मुझे एक नहीं, आई एम दिस इंडस्ट्री, तो हाँ बहुत सारे चीजें इम्पोर्टेंट है, यार इम्पोर्टेंट है बच्चों के, क्योंकि क्या होता है सी वो स्टूडेंट के लिए हो सकता है पहली बार हो, और उसके लिए होने के बाद उसकी जिंदगी सही है खराब हो सकती है। आपके इतने सारे केसेस है, आप अपने केस बताओगे तो पीपल कैन अवॉइड दोस मिस्टेक्स। अब मैंने बच्चे को बोला भी, वो कहता जी मैंने असाइनमेंट जमा कराने में लेट हो गया तो मेरे को उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, तो मैंने कहा लिख दे। तो वो लिखने में क्या लिख रहा है जी, although I know I have to submit the assignment by this date, but unfortunately I couldn't make the PDF. I couldn't, my mobile phone battery is running out, so I could not able to send the assignments. एक प्लेगरिज्म, बच्चे अपना आईडी दूसरे को दे देते हैं, यार दोस्त को दे देते हैं कि चल, वो उससे उसकी असाइनमेंट लगा के कॉपी करके दूसरे को जमा करा देता है। प्लेगरिज्म इज अ बिग इशू इन कनाडा, इवन इन इंडिया, हर जगह ही है, यूके में भी है।
तो बच्चों को अपने लॉगिन आईडीज कॉलेज के वो शेयर नहीं करने चाहिए, गुड है ना? पॉइंट, गुड पॉइंट. दूसरा एक और एस्पेक्ट है कि आपको कनाडा, यूके, आई एम श्योर सभी कंट्री में जाके ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करने. चाहे आपका कजन ब्रदर ही क्यों ना कह रहा हो कि भाई तू ग्रंटर बन जा, आपका स्टूडेंट स्टेटस है, आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो कहेगा यार कोई बात नहीं, हम सब इकट्ठे रहते हैं तो तेरे नाम पे घर ले लेते हैं. जो रह रहा सबके बराबर नाम पे लो ना भाई, ताकि ओनर सबके बराबर ही बने. तुम्हारे नाम पे साइन होगा तो इसीलिए ये अगेन मुझे लग रहा है, एंड आई होप माय टीम ने आपको ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं बोला हो, बट सेम थिंग, वी डू लॉट्स ऑफ मैच मेकिंग, you know, because we know the rules, we know the regulations, we know the contracts, we've been doing it, we're a professional, right? And we tell the same thing कि guys तुम 400 अपने आप जो कर रहे हो to save those सर्विस फी और ब्रोकेज, बट सब कुछ सही रहा तो बढ़िया है, पर अगर जिसके भी नाम पे है कॉन्ट्रैक्ट और एक बंदे ने छोड़ा भी, जेन्युइनली बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसका रेंटर कौन देगा? लायबिलिटी उस पे आ जाएगी जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है. प्रिसाइसली. अरे आपको मैं क्या बताऊं, मतलब कि मैंने तो पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स सुने, ऐसे ऐसे चीज़ें सुनी है, होते हुए देखी हैं कई ऐसे बंदों के साथ. तो मैं शॉक्ड कि भाई उनके रिश्तेदार उनको ठग गए. मीन्स वहाँ पे कनाडा में तो ये होता है कि कॉल्स बहुत आती हैं, रैंडम्स कॉल्स बहुत आती हैं. ओके. तो उसी में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं. किसी बच्चे से $8,000 उन्होंने ऐंठ लिया, बच्चों को डरा के. मतलब कि ऐसे फुल ऑफ इंसिडेंट्स. और वो उसमें आधे से ज्यादा मैं तो कहता हूँ वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही है, क्योंकि वो किसी से शेयर नहीं करते. हाँ. वो जब किसी को बताए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको बोल देंगे भाई रुक जा. हाँ. अब मेरे को पता है कि मैंने अपनी फैमिली में मेरे सभी को ये पता है कि अननोन कॉल उठाना ही नहीं है. ईमेल्स, अननोन ईमेल्स पे जवाब नहीं देना. आज सुबह ही बताता हूँ. तो माई ईमेल आईडी इज s.arora@universal.com. मेरे फाइनेंस टीम का मुझे मैसेज आया, सर आपकी तरफ से एक मेल आया हुआ है, $50,000 फॉरवर्ड करने हैं. मैंने कहा एक बार दोबारा ईमेल देख, तो Saurav.Arora था, मेरी s.arora है. फिर मतलब मैं सोचो हमारे साथ हमें नहीं छोड़ रहा कोई. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेस्टिनेशन दे गो. ऐसा नहीं कि ये कोई चीज़ कोई पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक है, ये सब जगह एग्जिस्ट करते, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो. हाँ सही बात है, सही बात है. थोड़ा हाउसिंग बारे में बताइए. आपको तो एक मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिस इंडस्ट्रीज में मिल के हाउसिंग की बात कर सकते हो, बिकॉज लोगों के लिए तो हाउसिंग नया है या फिर उनका इंटरेस्ट कम होता है, बिकॉज हाई वॉल्यूम लेस मार्जिन गेम है. आपकी एक जर्नी रही है हाउसिंग को लेके, यू वुड लाइक टू शेयर? देखिए हाउसिंग में ये है कि माय ब्रदर विद हिज पार्टनर उन्होंने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट किया है कॉलेज के अंदर, तो दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल. बच्चे बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. बच्चों को पता है कि मैंने जब एक किसी जगह पे जाना है, मेरे को वहाँ पे मेरे को अकोमोडेशन मिलेगी, मेरे को वॉकिंग डिस्टेंस है सिर्फ कैंपस के अंदर, तो उससे बहुत प्लस है. उसकी जो पहले 4 महीने का जो स्ट्रगल है ना, वो 50% कम रह जाता है. अब जब भी हम कई जगह जाएंगे, पहले जी चलो 2-4 दिन को रिश्तेदार संभाल लेगा, उसके बाद मेरे को घर ढूंढना है जी, घर ढूंढने के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को डॉक्टर अभी सजेस्ट करते हो कि बंदा यहीं से बुक करके जाए, यहीं से बुक करके जाए. उसको पता है कि मेरे को वहाँ जाके सोना है. देन आफ्टरवर्ड्स मैं सारा डिसाइड करूँगा क्या करूँ. हाँ एटलीस्ट पहला इफ नॉट फुल ईयर, एटलीस्ट पहले फर्स्ट 6 महीने, सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर 6 महीने तो आप अकोमोडेशन जरूर लेके जाइए. एटलीस्ट आपको किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े. मेरे और को एवरेज प्राइस पॉइंट क्या होता है? देखिए कनाडा की बात करूँ इट वेरीज, बट जैसे टोरंटो की बात 400 to 600 के बीच में वेरी करता पर वीक, पर मंथ. इट्स But नॉट ये महंगा ओनली है. अकोमोडेशन. मतलब बिकॉज वी डू मोस्टली प्रीमियम टू स्टार्ट विद, तो अगर मैं टोरंटो की बात करूँ तो $600-800 में आपका पर मंथ हो जाता है. वैंकूवर की बात करूँ तो $1,200 से $1,500. देन ऑफ कोर्स इफ यू आर स्टेइंग इन अ शेयरिंग अपार्टमेंट, इफ यू आर लाइक 3-4 फ्रेंड्स स्टेइंग टुगेदर, देन 600 तक में आ जाता है. हाँ, कहीं पे 400 हो जाता है, बट देन वो आउटस्कर्ट्स हो गए. शेयरिंग की ही बात करूँ, शेयरिंग में 400 से 600 के बीच में शेयरिंग में मिल जाता है. 2 से 3 बंदे शेयरिंग कर लेते हैं. दैट इज गुड इनफ. और किसी को इंडिविजुअल लेना हो, किसी को इंडिविजुअल लेना तो कोई यूबीसी जा रहा हो, तो वो 1000 प्लस पे जाएगा वो. और वो कितना दूर होगा?
डिपेंड करता है कि आपको 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर विद इन 5 किलोमीटर्स में आप ऑलमोस्ट आपको बेटर अकोमोडेशन मिल जाएगी. Very valid. Agree. I always say that it's all about the price is all about trade-off between location, price point and room type. आपको सिंगल्स चाहिए तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव होगा. आपको स्टूडियो चाहिए और एक्सपेंसिव होगा. आप शेयर रूम में हो तो सस्ता होगा. अगर आपको कॉलेज के बिल्कुल सामने चाहिए, वॉकिंग चाहिए, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा. If you can travel direct, then it will be cheaper. At least all these accommodations are cheaper than the college or university accommodation on campus. और यूनिवर्सिटी और एकोमोडेशन भी कम होती है. University accommodation बहुत लिमिटेड है ही होती नहीं. है. मतलब I mean, if I give you some number, only 1 out of 6 students get university halls. बाकियों को बाहर रहना पड़ता है. 85% students need to live out. You know, and then there is organized accommodation, there is unorganized. So these are few things which we've been talking for a while, and now of course the market and industry been very supportive. You know, the colleges, universities are very supportive. Education partners like yours are very supportive. So there is a hope for housing in Canada. Yes. What are the challenges there? Again, the first challenge is the price points and the location. That is more But important. for someone like you, I mean, you manage, let's say Yeah, we you have been like if there's those have in Windsor, the accommodation is there. It's perfectly fine. Students are very happy, and we haven't found any difficulty. is it easy to manage properly there or here? Yeah, for that, like I haven't with the discussion, I haven't found any issues with them. Interesting. Like I'm not fully deeply involved. Yeah. But somehow information I got because my students are studying over there, Okay, they're happy. so they are happy. Well, I'm asking because I have I mean, from a listing platform to a marketplace, now we are a global managed marketplace wherein we are looking for buildings to buy, building to operate, manage. So yeah, interesting. क्या लगता है कनाडा अगले एक तो जैन ओवरसीज अगले 3-5-10 साल आपकी क्या एस्पिरेंट है? आप वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी हो, वन ऑफ द सक्सेसफुल भी हो. अब आप कनाडा के साथ और यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज में देख रहे हो. सो व्हाट इज द जर्नी फॉर फ्रॉम हियर फॉर नेक्स्ट 10 years फॉर यू? Again, we learn about a lot of things for other countries like UK, and I still believe Jan overseas can grow in this market because still lot of unorganized players are in this market. So a good company with toply branding, good universities of UK, still a lot of crowd who want to go and study over there and come back to help their family in their businesses. तो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं. दे वांट देम कम बैक एंड जॉइन देयर बिजनेसेस. तो उनके लिए यूके में बहुत बड़ी मार्केट है. तो बहुत अच्छी तरीके से ये मार्केट किया जा सकता है इन आवर रीजन. एंड कनाडा इज देयर टू गो. कनाडा ने तो अगले की जो उनके एस्पिरेशंस हैं कनाडा की, दे वांट टू डू देयर पॉपुलेशन 100 million by the end of this century. Any insight you want to share which probably like which is Jan Saab special? Nothing. Most of things I have shared online, which I very rarely do, and I'm very openly to help the student in this platform. Just want to tell the students that don't listen to the negativity of Canada. It is such a beautiful country, immigration friendly, and most welcoming country. So if you want to study over there with proper courses, with your choice of location, colleges, and field of study, and you will be successful. Done, Jan Saab. Kuch rapid fire question just to know more you. You know, it's about you now. You've been very selflessly been sharing about what to do, what not to do to students. But let people know more about you, who has sent 50,000 students to Canada. You should be. कनाडा का बैच ऑफ ऑनर क्या है? सबसे जैसे यूके में सर मिलता है, लॉर्ड मिलता है, राइट? आई गेस ऑस्ट्रेलिया में ऑनर बैच है, समथिंग लाइक दैट. I'm forgetting that. King's medal होगा या मैं like कनाडा में किंग्स मेडल है. it's not I'm not prepared for this kind of कब मिल रहा है आपको? अरे नहीं यार 50,000 स्टूडेंट भेजे आपने. मेरे से ज्यादा वाले भी हैं बहुत. Good companies are there who have been in this field from so many years. Valid point. So what's one mistake you see students make often that easily avoidable? Quick, rapid fire. Like they have to do their research email ID. They have to use their own email ID for all the communications.
quick tip for acing a visa interview. Like in Canada, they don't find any interview, but still, if you have to be true, the person who is sitting there is there to grant you the visa. अच्छा कनाडा में वीजा इंटरव्यू नहीं नहीं होता होती यूएस में होता है US में होता है, बाकी कई जगह UK होता में है, नहीं but होता, again, हाँ. you have to very true, be yourself. be yourself It's not that you prepare yourself more yeah theoretically than practical. right. What's one subject you wish you had studied more in depth at school? Science. What's one risk you took that paid off significantly? Quitting a job and Like that risk I taken, I quit my job and joined Jain Overseas. Like this helped me a lot. what's one goal, personal or professional, you are determined to achieve in this next 5 years? I want to Jain Overseas is known for Canada only, but I wanted to make it should known for other countries too. That is the one aspiration which come into my mind right after this situation, which we are. What drives you? Is it money, cars, houses, watches, what? Is travel. Travel? Travel. You love travel? I love travel. And even when you are traveling so extensively, तो आप तो कनाडा में बहुत जाते हो बहुत ज्यादा. हर 2 महीने वहाँ नहीं, every Once a like quarter? साल में 3 से 4 बार जाना पड़ता और लंबे लंबे है. No, it's only 10-15 days. 10-15 days. then you should travel more. Because if you get my travel, you're like, तो पागल है. When lovely, because I'm in that stage wherein I don't like travel and I don't hate travel either. Part and parcel है. Obviously, but I love travel. I love to different places. Which is your best travel destination? कहाँ Europe, I have been to Europe. कहाँ नहीं गए? Still, अभी- बहुत अभी तो अभी यार क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि मैं किस लोग से बात करता हूँ देन दे स्टार्ट की यहाँ का मैंने रुक जाओ कहाँ नहीं गए बता दो तो अभी तो बहुत जगह अभी जाना बहुत- बाकी तो कहाँ गए हो? I mean Europe, in France, Berlin, then Italy, then Spain. जहाँ आईएसएफ के इवेंट होता है वो तो जा ही रहे हो. ISF के इवेंट और इवेंट्स होते प्लस दूसरी जगह जैसे स्पेन में नहीं होता, स्पेन गए, देन पेरिस में गए, देन मेक्सिको, ऑल दिस कंट्री, बट स्टिल लॉट ऑफ अभी बहुत- UK is the next destination where I want to go and see myself as that what kind of a country it is. यूके इज गुड. Student अच्छा अभी तो life. यूके नहीं गए आप तो आप मतलब मैं आपका यूके वर्जन और मेरे कनाडा वर्जन क्योंकि मेरे कनाडा आता भी है नहीं भी आता. मैं एक ही बार गया हूँ बट जैसे आप यूके हर साल में 2 या 4 बार जा रहे हैं कनाडा मैं ऐसे हर 2 या 3 महीने में यूके होता हूँ क्योंकि काम है वहाँ पे. वहाँ पे. Done, sir. Done. Anything you want to ask, share over to you? Thanks a lot. Thanks Saurav for this opportunity. It's really an honor to be here today at your office. नहीं sir, and you've been kind. discuss lot of things. Yes. And I hope students should take information from this session and make a good decision for them. On that note, thank you so much. Thank you, Jansa, for you. coming from Jalandhar all the way for this podcast. And you've been very kind and very very good-hearted soul, which is there to help. You know, I feel like मुझे पंजाब में बड़ा भाई मिला. Thank you. Right? And to everyone, I always suggest anything. If you like, do share. If you don't like, comment. So on that note, thank you so much, and I'll see you in the next episode. Thank you.